Yeah, today I have a beautiful poem of uh, Tennyson's Ulysses. That is a dramatic monologue. Already I have gone with the critical appreciation of that poem, and today I will explain. Uh, you can say that Ulysses का जो भी lines है, I will explain that poem. So just sharing with you some lines of Ulysses. Here you find, and you will see. I think it's visible. It's a complete text which I have taken from Spark Notes. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So you find already I told you कि Ulysses it's a very beautiful poem of Tennyson who was a representative poet who compromised between science and religion. And this poem is an example of dramatic monologue. You know कि dramatic monologue is an objective form of poetry in which you find only one speaker who speaks throughout the poem, and other characters, the remaining characters are only silent listener. They listen, they don't speak. And about other characters we come to know when the main character or the speaker speaks. So dramatic monologue, it is also said that it is the revelation of the psyche of the speaker. You have already gone with uh, the poem of Robert Browning, My Last Duchess. And in that poem, you came to know about what? In that poem, you came to know about a duke who was sinister, haughty, stubborn duke. But here you find whom? Here you find a very strong, yeah, you can say bold, courageous Trojan War hero Ulysses. The character Ulysses has been taken from Homer's Odyssey, and this character is ultimately what this character is, the voice of you can say Tennyson himself. This character is the voice of Tennyson himself. यह जो कैरेक्टर है वो टेनिशन की आवाज है. टेनिशन उस कैरेक्टर को, you can say, he used this character to awake the Victorian people, because we find that Victorian people were ultimately, they have doubt, they had dispute, distractions. Sometimes they were in tormenting situation. What they have to hold, either the path of science or the path of religion. These things you find. So here you come to know, to awake Victorian spirit, to awake Victorian people. This man has taken this important character, and this character is an aged man, but still he has some desire, still he has some dream. Even to complete that dream, he gives up his kingdom, he gives up his wife, and says that I don't have any interest to rule over such people who don't know about me, who only hoard, sleep, and feed, and know not me. The poem is written in blank verse. These things you find. So I just want to tell you, whenever you go with this poem, you will find that there are some important things we not only come to know about. You can say Trojan War. Yeah, we only don't come to know about Achilles. We only don't come to know about Ulysses. But we also come to know what was the intention of Tennyson be, uh, behind presenting this character. So he only wants to awake Victorian people. He only wants to awake, you can say, Victorian spirit, yeah, on the situation in which Victorian people has a tormenting situation, whether they have to go with, they have to go either, uh, you can say, follow science, or second hand or other hand they have to follow religion.
तो उन सबको लेकर के उन्होंने इस कैरेक्टर को डेवलप किया है। एंड हियर यू फाइंड द वेरी फर्स्ट लाइन, यूलिसिस सेज, यूलिसिस इज अ किंग ऑफ इथाका। यूलिसिस जो है इथाका का राजा है, उसकी वाइफ एजेड वाइफ है। हियर आई एम पॉइंटिंग एट व्हाट इज दैट कि एजेड वाइफ, दिस इज, सो यू ही सेज दैट कि my wife is an aged wife, even I the particular place where I am ruling, वहाँ के लोग कैसे हैं, सेवेज, अनटू अ सेवेज रेस, अनकल्चर्ड है। तो यू विल कम टू नो इन द फर्स्ट इंस्टेंस द यूलिसिस टेल्स अबाउट द प्लेस वेयर ही इज रूलिंग, Ulysses tells about the people who are living in his kingdom, means about their nature. Ulysses tells about his aged wife. Therefore, he says that it little profits, little profits, ना के बराबर, कोई लाभ नहीं है। That an idle king, idle का मतलब लेजी, अगर राजा जो है लेजी हो जाए, ईडल बन जाए, तो एक एक आलसी राजा से क्या किसी तरह के प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है? या अगर कोई राजा आलसी बन जाए, आलसी जीवन व्यतीत करने लगे, तो क्या जनता को उससे कोई फायदा होगा? या जनता ही अगर आलसी बन जाए तो क्या राजा को कोई फायदा होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये विक्टोरियन एज का प्रॉफिट लॉस गेन, लॉस, इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था कि इसको करने से क्या फायदा। तो उस विक्टोरियन स्पिरिट को लेकर के बात हो रही है। इट लिटिल प्रॉफिट्स, एक एक ईडल किंग के लिए, एक आलसी राजा के लिए कोई लाभ नहीं है। ईडल, अगर राजा भी ईडल भी है और उसके लिए, बाई दिस स्टिल हर्थ, अगर वह ऐसी जमीन पर, स्टिल साथ, हर्थ लैंड, ऐसी जमीन पर रूल करता है, एमंग दीज बैरन क्रैक्स, जहां की पे केवल बैरन क्रैक्स, एमंग दीज बैरन क्रैक्स, जहां पे केवल चट्टाने ही चट्टाने, जहाँ पे कोई फर्टिलिटी नहीं है, जहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे कोई इनोवेशन नहीं है, जहाँ पे कोई मॉडर्निटी नहीं है, जहाँ पे किसी तरह का कोई नया नजरिया नहीं, कोई नया ख्याल नहीं है। तो एक चीज, और वो केवल ये नहीं बताता कि माई किंगडम इज, या माई लैंड इज लाइक दिस, या माई किंगडम इज लाइक दिस। इफ यू टॉक अबाउट लैंड, इफ यू टॉक अबाउट kingdom, then land only doesn't matter, but the people who are living in that land, they are important. लैंड के साथ साथ उस जगह पे जो लोग रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कहता है, यूनिसिस कहते हैं कि ऐसी जगह पर रूल करना जहां पे केवल बैरन क्रैक्स हो, बैरन क्रैक्स का मतलब अनुपजाऊ, क्रैक्स का मतलब खुरदुरे चट्टान, जहां पे केवल चट्टान ही चट्टान। तो बैरन क्रैक सिंबल है, किसका सिंबल है? बैरन क्रैक सिंबल है इनफर्टिलिटी का, बैरन क्रैक से सिंबल है अनप्रोडक्टिविटी का, बैरन क्रैक से सिंबल है स्टीरियोटाइप आइडियाज का, टैबू टैबू टाइप पीपल का। बैरन क्रैक सिंबल है कि वहां पे कोई मॉडर्निटी नहीं है, वहां पे कोई नजरिया नहीं है, वहां पे कोई ख्याल नहीं है, वहां पे कुछ नया करने को नहीं। सो यू फाइंड कि एमंग दीज बैरन क्रैक्स, फिर वो कहते हैं कि एक आलसी राजा को ऐसी जगह शासन करना जहां का लैंड बैरन हो, जहां की लैंड हर्थ हो, अनुपजाऊ हो, और उसके बीच में जहां चट्टाने ही चट्टाने हो, क्या ऐसी जगह पे रूल करना किसी तरह का कोई बेनिफिट देने वाला है? इसके साथ साथ मैच्ड विद एन एजेड वाइफ, और जिसे अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहना पड़ रहा हो, आई बीट एंड डोल। अब वो बता रहे ये सब कोई दूसरा नहीं है बल्कि मैं खुद हूँ। आई बीट एंड डोल, मैं बीट और डोल करता हूँ। बीट एंड डोल का मतलब होता है रूल्ड आउट, मुझे शासन करना पड़ता है। किन लोगों पर? उन लोगों पर जो सेवेज है। सेवेज का मतलब होता है असम, बारबेरिक, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, और जहां पे लॉ का कोई महत्व नहीं, बल्कि वहां का लॉ
अनइक्वल लॉज है। तो क्या कोई राजा ऐसा हो सकता है जो अनइक्वल लॉस को लागू करता हो? क्या कोई राजा ऐसा हो सकता है जो सेवेज रेस, रेस का मतलब पूरा समुदाय, पूरा उस राज्य की प्रजा को रिप्रेजेंट करता है, जो असभ्य टाइप की है? क्या उनके साथ रह करके शासन किया जा सकता है? क्या उनके साथ रह करके एक बेहतर समय गुजारा जा सकता है? यू फाइंड कि हियर the poet only was to explain what the only was to explain कि the king is not satisfied with his people. The king is not satisfied with its kingdom, and the king is not satisfied with his aged wife, because he says that कि for a king, if you are a king, if you do this, if you pass such a type of life, there is no benefit at all. It's only the characteristic of an idle king. और उस idle, वो idle king भी एक बार ये सोचेगा कि that there is no profit if I do such thing, if I pass such a type of life, then there is no profit, then there is no gain at all. क्योंकि उसने कहा कि क्या क्या चीजें हैं, हमारा जो साम्राज्य है वो कैसा है, स्टिल हर्थ है, दिस वर्ड स्टिल हर्थ, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टिलिटी, अनुपजाऊ है। और उसके बीच में जो चट्टाने जैसा जो पूरा खुरदुरी चट्टाने, जहाँ पे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ पे, तो मैंने बताया कि वो साम्राज्य के लैंड की बात नहीं कर रहा है, उस लैंड में रहने वाले जो लोग हैं वे सेवेज हैं। दे डोंट हैव एनी इनोवेशन, दे आर नॉट कल्चर्ड पीपल, दे आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल, दे डोंट थिंक अबाउट किंग, दे डोंट थिंक अबाउट their kingdom. They only think that it's only the duty of the king to do this and that. आगे वह और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साम्राज्य में जो लोग हैं उनकी एक ही आदत है, दैट होर्ड, वो चीजों की होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग का मतलब इकट्ठा करना, दैट होर्ड। एंड स्लीप, बहुत सारा अन्न, बहुत सारी चीज इकट्ठा कर लिए हैं, खाएंगे और सो जाएंगे। स्लीपिंग उनकी हैबिट में, फीडिंग उनकी हैबिट में, एंड नो डॉट मी, और वे मुझे जानते तक नहीं। दैट होard एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। सो what do you find here? Here you find some very important points कि king is not satisfied with his people, and what the people are doing, people are only doing one job, they hoard, they sleep, they feed, and do not be. Just I want to know, if there is a king, if you are king, if I am king, so king has some identity. King expects something from his people. King has his own duty, and the people who are living in his kingdom, they have their own duties. If both are not performing their duties very well, then certainly kingdom, kingship, king, and the people living there, they will be what type of people? Inactive people, lazy people. And what will happen? The kingdom will come on the verge of decline. जो साम्राज्य है उसका पतन हो जाएगा। तो जो यूलिसिस जैसा जो राजा हो, जो ट्रोजन वार में भाग लिया हो, जो करेजियस हो, जो बोल्ड हो, जो आप कह सकते हैं कि जो है एक बोल्ड डिसीजन लेने वाला हो, उसके जैसे राजा को ऐसी जिंदगी पसंद नहीं आ सकती है। सो दिस इज व्हाई यू फाइंड दीज लाइज, यू फाइंड दीज थिंग। फिर वो कहता है कि मैं जो है ऐसे लोगों के साथ रह नहीं सकता हूँ, आई कांट लिव with such type of people. I can't rule over these people. I can't live in such kingdom that that kingdom is barren, that kingdom is unfertile, and the people who are living in that kingdom, they are savage, and they don't have any duty, they don't have any desire to know about their king, they don't have any interest to maintain their own identity.
They don't have any interest to do their duties honestly. They have only one job, होर्डिंग, चीजों को इकट्ठा करना है, चाहे वो होर्डिंग पैसे को, चूंकि विक्टोरियन एज में ये आम बात थी, ज्यादातर लोगों में ये भूख थी कि कितना पैसा इकट्ठा कर ले, कितना शोहरत हमें मिल जाए, व्यक्तिगत रूप से, समाज के लिए नहीं, वतन के लिए नहीं। तो वो कहते हैं कि चाहे वो होर्डिंग की बात हो, वे केवल होर्ड करते हैं, स्लीप करते हैं, मतलब सोते हैं, खाते हैं, और मेरी कोई परवाह नहीं करते हैं। तो एक एक विक्टोरियन, एक 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 इंग्लैंड था जो क्वीन एलिजाबेथ के समय का था, कि देयर पीपल, देयर सब्जेक्ट, या उस समय के जो लोग थे, दे वर वेरी लॉयल टू देयर क्वींस। तो ऑल दिस थिंग वी फाइंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा। अब वो अपनी डिजायर की बात करेगा, मेरी क्या इच्छा है, मैं अपने साम्राज्य को छोड़ना चाहता हूँ, और छोड़ करके जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। वो कहते हैं कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। अब मैं रेस्ट नहीं करूंगा। आई कैन नॉट रेस्ट, कहाँ पे रेस्ट नहीं करूंगा, दो सेंस में निकल सकता है। सबसे पहला कि आई हैव डिसाइडेड टू लीव दिस किंगडम, नंबर वन पॉइंट, आई हैव डिसाइडेड टू लीव दिस किंगडम। Number two point, when I leave this kingdom, I have to do something. And what I have to do something? Traveling. To do some new thing. To explore some new domain of knowledge. To tell the people about such land that is untraveled land. और लोग ये जरूर कहेंगे कि राजा बूढ़ा हो चुका है, क्या इस उम्र में वो ट्रेवलिंग कर पाएगा, क्या इस उम्र में वो कोई काम कर पाएगा। तो उन्होंने बहुत बेसिक बात बताई, क्या बताई? आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। अगर मुझे ट्रेवलिंग करना पड़ता है, नई जगह जानी पड़ती है, नए क्षेत्र को खोजना पड़ता है, तो मैं रेस्ट नहीं करूंगा। आई कैन नॉट रेस्ट, मैं रेस्ट नहीं करूंगा फ्रॉम ट्रेवल, ट्रेवलिंग से। आई विल ड्रिंक, बल्कि मेरी इच्छा है, विल डिजायर, मेरी इच्छा है, ड्रिंक, कि मैं पीना चाहता हूँ, लाइफ टू द लीज, लाइफ टू द लीज, द लास्ट ड्रॉप ऑफ लाइफ, बल्कि जीवन का जो अंतिम बूंद है जिंदगी का, यानी जीवन का जो अंतिम क्षण है, वह भी मैं कुछ करके जाना चाहता हूँ। इसीलिए वो कहते हैं कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मीन्स आई विल गो समवेयर, आई विल डू समथिंग। I can't like to pass such a type of life. What type of life? Where there is only resting, where there is no work to do. This is why he says that I cannot rest from travel. I will drink to, I will drink life to the least. मैं जीवन का जो अंतिम मोमेंट है उसका भी मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं दूर दे करके कुछ ना कुछ जाना चाहता हूँ, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड, मैंने अपने जीवन में हमेशा इंजॉय किया। यूनिसिस के इंजॉय का मतलब कि आई डिड सम एडवेंचरस जॉब, मैंने साहसिक कार्य किए। इंजॉय का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके धारावाहिक देखा, गाना सुना, डांस किया, म्यूजिक लगाया। नो, आई हैव डन सम एडवेंचरस जॉब। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड, मैंने हमेशा अपने जीवन को इंजॉय किया, चैलेंजिंग वर्क के साथ, चैलेंजिंग जॉब के साथ। ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां भी देखी है, मतलब मुझे जब सफलता मिली मिली तो मैं खुश भी हुआ, और हैव सफर्ड ग्रेटली, और मुझे बहुत कष्ट भी हुआ। दोनों चीजें, लाइफ के दोनों पहलू की बात बता रहा है। लाइफ में विजय भी है, लाइफ में पराजय भी है। जब आप विजयी होते हैं तो आपको इंजॉय होता है, जब आप पराजय के होते हैं तो आपको सफरिंग होता है। तो उसने कहा कि जो लाइफ मैंने जिया है वह इनएक्टिव वाली लाइफ नहीं रही, वह इडल किंग वाली नहीं रही, वह लेजी किंग वाली लाइफ नहीं रही है, बल्कि आई हैव लिव्ड सच अ लाइफ वेयर आई मीन्स आई हैव इंजॉयड इन माई लाइफ, आई हैव गॉट विक्ट्री इन माई लाइफ, आई वॉज डिफीटेड ऑल्सो, आई हैव सफर्ड इन माई लाइफ। ये सब मैंने जीवन देखा है बहुत करीब से। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, और मैं उन लोगों के साथ भी गया हूँ जो मुझे चाहने वाले जो मेरे थे, दैट लव्ड मी, एंड एलोन, और मुझे कभी कभार अकेले भी जाना पड़ा। मैंने जीवन की यात्रा अपने दोस्तों के साथ मैंने तय की है, और कुछ जगहों पे मैं अकेले भी जाके अपने आप को प्रूव किया हूँ। तो जो एलोनलीनेस है, यह विक्टोरियन एज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विक्टोरियन एज में
कभी लोग साथ में खड़े भी होते हैं, कभी लोग अकेले भी छोड़ देते हैं। तो शायद यूलिसीस ये बताना चाहते हैं, या यूलिसीस के माध्यम से टेनिसन ये कहना चाहते हैं, इफ यू आर लिविंग इन विक्टोरियन एज, इफ समवन गिव्स यू योर हैंड, अगर कोई आपको अपना हाथ देता है तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन हो सकता है आपको अपना जीवन अकेले भी तय करना पड़े। जैसे यूलिसिस क्या किया है, यूलिसिस अपने बच्चे को जिम्मेदारी दे के चला जाएगा, वाइफ को छोड़ करके चला जाएगा, ही विल डू हिज ड्यूटी। या अगर आपने देखा ब्रेक 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 में टेडिशन कहते हैं कि एट द वाइनिस्ड हैंड, कौन सा वाइनिस्ड हैंड, आपके आर्थर हेनरी हैलम का, कि उनका हाथ पकड़ के मैंने जीवन के खूबसूरत पल जिए, लेकिन अब वो हाथ वापस नहीं आएंगे। तो एक छटपटाहट है, एक अकेलापन है। अगर आप तस्वुर करेंगे, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दीज लाइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विक्टोरियन लाइफ एंड विक्टोरियन एज, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। दैट लव्ड मी, कुछ मेरे चाहने वाले थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऑल शो, मैं समुद्र के किनारे पर भी गया। समुद्र के किनारे का शो का मतलब समुद्र के किनारे, मतलब चूंकि उस समय जो जीवन था विक्टोरियन एज में, वो पूरा समुद्र के इर्द गिर्द ही घूमता था। चाहे बिजनेस रहा हो, चाहे वॉर का कॉन्सेप्ट रहा हो, चाहे ब्रेवरी का कॉन्सेप्ट रहा, यू फाइंड दिस थिंग। तो उन्होंने कहा कि मैं समुद्र के किनारे पर गया, एंड वेन थ्रू स्कॉटिक ड्रिफ्ट द रेनी हेडेस। Hades, it's what Hades is a group, a cluster of 7 stars। उन्होंने कहा जब मैं समुद्र के किनारे गया तो मैंने वहां पे देखा कि कैसे जो है बादल समुद्र से बनते हैं, एंड दे आर ड्राइवन, और जब वे ऊपर बन करके आते हैं तो कैसे बारिश होती है, और इसमें कैसे हेडेस का कंट्रीब्यूशन है। हेडेस ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू, क्लस्टर ऑफ 7 स्टार्स। उसका एक इंटरप्रिटेशन दूसरे ढंग से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिटरेरी सेंस में ये देखने को मिलेगा कि जब आप एक नए जर्नी पर निकलते हैं तो आपको बहुत सारे नए ज्ञान होते हैं। यू कम टू नो अबाउट सम न्यू थिंग, यू फाइंड सम न्यू डोमेन ऑफ नॉलेज, एंड यू गेट सरप्राइज, यू गेट सरप्राइज या यू बिकम सरप्राइज। और कैसे, ठीक उन्होंने यही बताया कि थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट, कैसे जो है क्लाउड्स आर ड्राइव इन, क्लाउड्स आर ड्राइव इन। और ये जो क्लाउड्स ड्राइव इन होते कहाँ से, फ्रॉम द वाटर ऑफ द सीज, फ्रॉम द वाटर ऑफ द सी दे आर ड्राइव इन, एंड टू टर्न, टू टर्न द वाटर ऑफ सी into cloud, we find the contribution of Hades, and again it comes in the form of the rain। ये उन्होंने एक चीज बताया। फिर उन्होंने कहा कि और उसी समुद्र के किनारे हम एक दूसरी पिक्चर देखते हैं, वो क्या होता है, वेस्ट द डीप सी। हम ये भी देखते हैं कि जो जो समुद्र है वो काफी धुंधला हो जाता है। समुद्र के इर्द गिर्द की जो क्षेत्र है वो काफी धुंधले, विजिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक उम्मीद की किरण होती है। यहाँ पे हम इसका तुलना इस तरह से कर सकते हैं कि हम उम्र के जिस पड़ाव पर है, हो सकता है कि ये मेरे आखिरी लाइफ के लास्ट स्टेजेस चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में विजिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और चीजें नहीं है। अगर हम सर्च करने की कोशिश करेंगे तो वी कैन फाइंड सम न्यू थिंग। फिर कहते हैं आई एम बिकम अ नेम, मेरी इच्छा है कि मेरा नाम दुनिया में हो। आई एम, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आई एम बिकम अ नेम, मैं अपना नाम प्रूव करना चाहता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये एक रिजोल्यूशन दिखाता है, एक उनका फर्म डिटर्मिनेशन दिखाता है। और हम अपने सारे ब्यूटीफुल एस्पिरेंट से कहना चाहते हैं कि ऑलवेज कोट दिस लाइन, ऑलवेज कोट दिस लाइन वेर एवर यू आर, वेदर यू आर इन जॉब, whether you are at your home, whether you are in society, you have to say I am become a name, I am become a name। मेरा अपना नाम है, मेरा अपना वजूद है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। अनडाउटली एक समय था जब एक कोटेशन होता था कि व्हाट इज इन नेम। अगर आप शेक्सपियर का कोटेशन देखिएगा तो वहां पे आता व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या है। लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर के साथ साथ विक्टोरियन एज तक आते आते आई एम बिकम अ नेम, मैं प्रूव करना चाहता हूँ। आई एम समथिंग मीन्स आई हैव रेजोल्यूशन, आई हैव ड्रीम्स, आई हैव some thoughts, I just want to give something to the people, I have become a name। For always roaming with a hungry heart, मैं हमेशा टहलना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। रोम का मतलब होता है कि एमलेस वैंडरिंग, बगैर उद्देश्य के यहाँ वहां जाना।
लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हंग्री हार्ट। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वो ये भी कह सकते थे कि वाई क्यों नहीं उन्होंने वर्ड यूज किया हंग्री माइंड, क्यों हंग्री हार्ट आया हुआ। उन्होंने कहा कि फॉर ऑलवेज रोमिंग, मैं हमेशा घूमता रहा हूँ विद अ हंग्री हार्ट। जो हंग्री हार्ट वर्ड होता है, यह इंडिकेट करता है कि दिल की जो भूख होती है वह आदमी की साफ नीयत को बताती है। जो दिमाग की भूख होती है वह आदमी की साफ नीयत या उसके इंटेंशन को नहीं बताती है। तो पोएट ने बहुत चालाकी के साथ यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि हंग्री हार्ट से मेरी हमेशा इच्छा थी कुछ करने की, मेरे अपने अंदर एक जज्बात थे कुछ प्रूव करने की सोसाइटी के लिए, देश के लिए। तो ये वर्ड यूज करके वह विक्टोरियन एज के लोगों का स्पिरिट अवेक करना चाहता है कि यू हैव टू बी लाइक यूलिसिस। यूलिसिस has a hungry heart. He was doing these things at the age of 80, at the age of 90, yeah, the last days of his life. The same spirit you have. You must have a hungry heart. फिर वो कहते हैं जहां जहां मैं गया, मच हैव आई सीन, पास्ट की बात बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। सिटीज ऑफ मेन, मैं बहुत सारे शहरों में गया, वहां के लोगों से मिला। एंड मैनर्स, वहाँ के रीति रिवाजों को देखा, क्लाइमेट्स को देखा, काउंसिल्स को देखा, गवर्नमेंट्स को देखा। ये एक बात बहुत अच्छी है इंडियन लिटरेचर में, हिंदी में, राहुल सांकृत्यायन का अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। वहां पे अगर आप देखेंगे सेम स्पिरिट यही है कि यूलिसीज से कहते हैं आई हैव गॉन एट वेरियस प्लेसेस, आई हैव मेट सो मेनी पीपल, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, आई हैव सीन सो मेनी सिटीज, आई हैव सीन मैनर। मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट्स बहुत सारे राष्ट्रों का। तो चूंकि यूलिसीज जो थे वो जो ट्रोजन वार में पार्टिसिपेट किए थे तो उनको एक मौका मिला, और किंग होने के नाते उनको एक मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे किंग ऐसे हैं जो अपने राज्य की सरहद तक ही महदूद रहते हैं, वो कहीं बाहर आते जाते नहीं है। बट हियर ही सेज दैट कि नो आई डिड दिस जॉब। बट यू विल कम टू नो, एक और पॉइंट उनका रहा है, वह एक ये है कि विक्टोरियन एज में जो आप देखेंगे कि विक्टोरियन एज का जो बिजनेस है वो दूर दूर तक फैला, वहां के लोग आए। और ये इंडिकेट करता है कि जो इंग्लिश पीपल थे वो एशिया में गए, अफ्रीका में गए, दुनिया के हर हिस्सों में उन्होंने रूल किया। और ये तभी हो पाया जब जब उनके अंदर हंग्री हार्ट हुआ। अगर आप देखिए भारत खुद जो है 1857 के बाद ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम बन था। उसके पहले जो भी मुगल थे, या प्लासी का युद्ध हुआ था, या बक्सर का युद्ध, सॉरी, जो और भी युद्ध हुए थे उसमें उनके उन्होंने कुछ हिस्से को ब्रिटिशर ने अपने हिस्से उसमें लिया था। लेकिन 1857 के बाद, और ये जो पोयम है ये 57 के पहले की स्पिरिट को या उस समय की थॉट को दिखा रहा है कि ऐसा आपको होना चाहिए। उनमें वो अवेकनिंग लाने की कोशिश कर रहा है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, माई सेल्फ नॉट लीस्ट, बट ऑनर्ड ऑफ देवाल, मैं जिनसे मिला मैंने उन सबको सम्मान दिया। बट ऑनर्ड ऑफ देवाल, मैंने कोई भी चीज अपने लिए नहीं किया। आई डिड एवरीथिंग फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्धों का डिलाइट लिया, उसका भी आनंद लिया। विद माई पियर्स, पियर्स मैंने इक्वल हीरोज। ऐसा यूलिसिस की एक खासियत है, यूलिसिस कहते हैं आई एम नॉट ओनली द हीरो, विद मी देयर वर सो मेनी हीरोज एंड दे वर द ब्रेव वॉरियर्स, आई आल्सो stood with them, I also participated in Trojan War. I just went with these equal peers, and I have got what I got the delight of what these things you find. So what I want to tell you, I drunk delight of battle with my peers far on the ringing plains of windy Troy. और दूर जो है आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं, फॉर दूर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स, किसी समतल मैदान में जो घंटी बज रही है, वह किसकी आवाज आ रही है? विंडी ट्रॉय, ट्रॉय के घमासान युद्ध की आवाज है। मुझे आज भी वो आवाज सुनाई पड़ती है। इसका मतलब अगर वो पास्ट में जाते हैं, रिकॉल कर रहे हैं, यूलिसिस अपने पास्ट को, अपने गोल्डन डेज को रिकॉल कर रहे हैं कि आई वॉज अ वॉरियर, आई वॉज अ हीरो, आई वॉज अ बोल्ड, a person who had taken bold decision,
I was a person who participated in the battlefield. I have peers, I have equal heroes. I met so many people. I have gone at so many places. I have seen so many governments, climates, councils, these things. I have एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जो बादशाह ऐसी जिंदगी गुजारा हो, क्या अब लास्ट समय में वो ऐसी जिंदगी गुजारेगा कि जिसकी वाइफ एजेड हो चुकी हो, जिसके अपने लोग जो है अनकल्चर्ड हो, वे केवल सोते हो, खाते हो, पीते हो, राजा को जानते ही नहीं हो। तो यूलिसिस जैसा राजा तो उस जगह को नहीं रूल कर पाएगा। इसीलिए वो कहता, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। मैं खुद उनका हिस्सा रहा हूँ जिन लोगों से मैं मिला। मतलब जो मेरे इक्वल हीरोज थे जिनसे मैं मिला, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। मैं उनके साथ युद्ध में पार्टिसिपेट किया। ऐसा नहीं कि केवल गया, शेक हैंड किया, कपिल का कॉमेडी शो हुआ, उसके बाद आया, प्रचार किया, चला गया। नो, नॉट एट ऑल। आई डिड दैट जॉब। यट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्च। जो भी एक्सपीरियंस पहले रहे हैं मेरे पास उस समय के, वे एक आर्च के समान है। आर्च एक डोर के समान है, वेयर थ्रू, जहां से क्या चीज आती है, ग्लीव्स दैट अनट्रेवल लैंड, जहां से मुझे उस जगह की रोशनी नजर आती, चमक नजर आती। ग्लीव्स वाले चमक, अनट्रेवल वर्ल्ड, उस वर्ल्ड की जहां पे किसी ने ट्रेवल नहीं किया हुआ है, वहां की रोशनी मुझे नजर आती है। अनट्रेवल वर्ल्ड का मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में मैंने जो काम किया, पास्ट में भी मुझे जो अनुभव मिला, वह अनुभव उस दरवाजे के समान है जो मेरे लिए आशा की किरण लेकर के आता और मुझे कहता है कि अब मेरा काम क्या है, उस जगह की यात्रा करना जहां पे अभी तक लोग गए नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ तक आज एक्सप्लेन किया। आई टोल्ड यू कि व्हाट यूलिसिस वांट्स, व्हाट यूलिसिस से। टुमारो आई विल टेक सम अदर लाइन्स, क्योंकि एक दिन में यूलिसिस को पूरा एक्सप्लेन करना था, इट्स नॉट पॉसिबल। So tomorrow I will go with you. If you have any suggestion, you can just WhatsApp group. I think कि KD sir की भी class होगी. You are getting late. So thank you for giving your beautiful company and just be Ulysses. Always will be. Thank Okay, thank thank you. you. Thank you.